Welcome my dear friend, welcome again in my channel Physics Jane that is special for joint and NEET। तो बच्चों नीट जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है मई के जो 5 मई है वो नीट के एग्ज़ाम होगा उसमें, ठीक है। तो आज हम लोग जो रिफ्रैक्शन चैप्टर है उसका कुछ की टॉपिक्स और की मोमेंट का जो रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट दिन इसके बारे में नीट का जो स्पेशल टाइप को जो प्रॉब्लम आता है परीक्षा में जो प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज थ्योरी और नेक्स्ट दिन न्यूमेरिकल्स फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो एट फर्स्ट वी गो विथ दैट। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन ए लाइट, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, व्हेन ए लाइट passes from one medium to another medium, it bends either towards normal or away from the normal, either towards the normal or away from the normal। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम वन मीडियम, अगर मैं इसको कह दी कि मीडियम 1 और इसको कहती हो कि मीडियम 2, डोंट स्किप। आपको लगा होगा कि ये तो हम जानते हैं, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात मैं अब कहूँगा इस लेक्चर में, जो मैं इम्पोर्टेंट बात आपको पढ़ाऊँगा वो शायद आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे, ठीक है। सो वीडियो देखते रहिए। सो मीडियम 1 और मीडियम 2, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट when light passes from one medium to another medium is called refraction। Now what is the properties of refraction? So properties of refraction, number 1 properties of refraction, that is the medium in which light goes with higher velocity is optically rarer medium, and the medium in which light goes with lower velocity is optically denser medium। Now what is optically rarer and optically denser? This does not means the actual density of that medium। Tarpin oil have density less than water, but tarpin oil is optically denser than water। So the medium in which light goes with higher velocity is called optically rarer medium, and the medium in which light goes with lower velocity is called optically denser medium। That is, velocity of rarer medium must be greater than velocity of denser medium। So if we take air, so velocity of in air must be greater than which velocity of glass। Okay, so अगर हम एयर, ग्लास और वाटर के बारे में बात करें तो velocity of air must be greater than the velocity of glass। velocity of air must be greater than the velocity of glass, and velocity of glass और अगर वाटर के बारे में हम बोले तो the velocity of water must be greater than the velocity of glass। velocity of light in glass is about 1.5 into 10 to the power 8 meter per second, and velocity of water, the velocity of light in water is 2 into 10 to the power 8 meter per second। So अब जानेंगे कि कैसे होता है ये। नेक्स्ट वी गो विथ दैट
when light goes from rarer to denser medium, when light goes from rarer to denser medium and denser to rarer medium, which occur, that bending of light occur. Okay, so if light goes from rarer to denser medium, then rarer to denser medium, this is incident light and this is reflection light. This is the ray of light if the denser medium were absent. So when light goes from rarer to denser medium, it bend towards normal. N1, N2 is normal, you know, towards normal. And here angle of deviation, that is this angle, must be, if angle of incidence I and angle of refraction is R, angle of refraction is, you know, the refracted ray and the normal. So delta equal to I minus R. The another is when light goes from the denser medium to rarer medium, this is rarer medium and this is denser medium. So the reverse thing occur, angle of incidence, angle of refraction. Light bends away from normal. So here the deviation delta must be R minus I. This is the basic knowledge of refraction you have to know. Okay. Next we go with the refractive index and the laws of refraction. Laws of refraction is nothing but the sine of the angle I, the second laws of refraction, the sine of the angle I and the sine of the angle R must be equal to a constant which is known as the refractive index of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. हम पूरी जो चैप्टर है उसको रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए क्या होता है कि हम सिर्फ की पॉइंट्स को इसमें आपको बोर्ड में लिख रहा हूँ. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेंस कांस्टेंट और स्लेंस का जो पैरामीटर है वो कहते हैं म्यू को. सो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं. वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये सिर्फ रिवीजन है क्योंकि रिफ्रैक्शन के बारे में आई नो आप जानते हैं. अगर आपको पूरी चैप्टर को समझना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरी चैप्टर फिर से रिवीजन करवा दूंगी या समझा दूंगी. ओके, समझा दूंगा. मेरे हिंदी थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि मैं बंगाली हूँ और इंग्लिश में बोलने से कुछ छात्रों को तकलीफ होता है, पूरा तरह से समझ में नहीं आता है टर्म को. सो लेट अस कंसीडर विद द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि the refractive index of medium, the refractive index of medium with respect to vacuum is called absolute refractive index. That is when light goes from vacuum to any medium, then it is generally written as mu vacuum to mu medium equal to sine of I by sine R. एग्जाम्पल क्या है? म्यू जी इक्वल टू 3/2, म्यू डब्ल्यू
equal to 4/3. That is the absolute refractive index of glass equal to 3/2. Absolute refractive index of water equal to 4/3. Absolute refractive index of diamond equal to 12/5. Then next we go with the relative refractive index. Relative refractive index. When light goes from one medium to another medium, कोई भी वैक्यूम नहीं है यहाँ पे, to another medium, then the sign of angle of incidence, then the ratio of the sign of angle of incidence to the angle of refraction is called relative refractive index. Okay, so we can say that 1 mu 2, that is refractive index of 2 with respect to 1. जिसको पहले लिखता है उसको कहता है रेस्पेक्टिव. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is written as mu 2 by mu 1. Okay, जैसे कि mu wg, that is relative index, refractive index of glass with respect to water. We can find out the relative refractive index from absolute refractive index. We can find out the value. Let us इसको समझते हैं एग्जाम्पल की. चलो लिख लिया इसको. अब जानते हैं, आई नो कि आपको ये ज़रूर क्लास 12 में हमने पढ़ा होगा ये. सो it is said that the, suppose question number 1, it is said that the absolute refractive index, suppose Ri, of glass is 3/2 and water is 4/3. Find refractive index of glass with respect to water. समझ में आ गया बात? So it is said that mu g and mu w, mu g 3/2, mu w को वैल्यू बताया है कि 4/3. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज mu g, किसका सापेक्ष में है? विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज w mu g. वी कैन राइट दैट 1 mu 2 इक्वल टू mu 2 by mu 1. ओके, सो w mu g इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज mu g by mu w. mu g का जो वैल्यू है वो है 3/2. अगर इसको डिवाइड करें mu w, दैट इज 4/3, वी कैन गेट आउट एज 3/2 by 3/4, that is 9/8. So the relative refractive index of glass with respect to water is 9/8. Okay, now we go with principle of reversibility. Principle of reversibility means
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अगर वो वापस आता है तो सेम जो पाथ है वो ट्रेस करके आता है। अगर ऐसे जाता है लाइट फ्रॉम ए टू बी, देन अगर बी टू ए वही वापस पथ में जाता है तो वो उसी लाइन को फॉलो करके जाता है। सपोज देयर आर टू मीडियम, दिस इज मीडियम 1, we say it mid 1, and this is medium 2, we say it mid 2. The refractive index of medium 1 is mu1 and mu2. Suppose light goes from, if mu1 greater than mu2, then the refractive rays is bending away from the light. This is the angle of incidence I and this is the angle of reflection R. So we can say that mu1 and mu2 अगर होता है तो क्या होता है कि यू कैन से दैट mu 1 2 mu 1 2 इक्वल टू 1 बाई mu 2 1, mu 1 2 इक्वल टू 1 बाई mu 2 1, और mu 1 2 इंटू mu 2 1 इक्वल टू, और 1 mu 2 इंटू 2 mu 1 मस्ट बी इक्वल टू 1, 1 mu 2 2 mu 1, ये 1 मीडियम 1 है, मीडियम 2, और वापस यह मीडियम 1 आ गया, तो 1 mu 2 इंटू 2 mu 1 इक्वल टू 1। अगर मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है ऐसे, the incident ray and the final emergent ray are parallel to each other. Suppose this is mu1, mu2, mu3 and mu1. So we can say that 1 mu2 in multiply by 2 mu1, 1 mu2, sorry, multiply by 2 mu3, multiply by 3 mu1 must be equal to 1. समझ में आ गया ना? 1 mu2, 2 mu3, 3 mu1, इस सभी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 के बराबर है। ओके, सपोज म्यू आई जे इज रिप्रेजेंट दैट ए रे म्यू, और सपोज आई म्यू जे रिप्रेजेंट ए रे, लाइट रे गोज फ्रॉम आई टू जे मीडियम, मीडियम आई टू मीडियम जे। हमको पूछा है कि 2 mu 1 इंटू 3 mu 2 इंटू 4 mu 3, इसका जो मल्टीपल है यह क्या होगा? तो कैसे हम बताइए? इसका जो मल्टीपल है, हमको ऑप्शन दिया है 4 ठो, क्योंकि नीट में 4 ऑप्शन ही होगा, सॉरी 2 mu 1, 3 mu 2, 4 mu 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है यह क्या होगा? सो कैसे हम निकालें? अगर आपको आता है तो आपको आपका जो एक्सरसाइज बुक है वहाँ पर आप इसको लिखिए। सो अगर लाइट ट्रैवल करता है मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, तो वी नो दैट, वी नो, ये तो लिख रहा है, पता हुआ नहीं, 1 mu 2, 2 mu 3, ओके, 3 mu 4 इक्वल टू 1, है ना? 1 mu 2, 2 mu 3, 3 mu 4 इक्वल टू 1। अभी 1 mu 2 क्या है? 1 बाई 2 mu 1, 2 mu 3 1 बाई, और अगर हम डायरेक्ट इसको लिखें कि 2 mu 3, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2 mu 1, हमको पूछा है कि 2 mu 1 मल्टीप्लाई बाई 3 mu 2 multiply by 4 mu 3. We know 1 mu 2 equal to mu 2 by mu 1. So 2 mu 1 means mu 1 by mu 2. 3 mu 2 means mu 2 by mu 3. And 4 mu 3 is mu 3 by mu 4. अब ये जो टर्म है ये कट गया है. So we can get mu 1 by mu 4.
इसका मतलब है 4μ1 या कि 1/1μ4। अब ये ऑप्शन भी होता है, ये ऑप्शन भी होता है, जिसका होता है इसको टिक दीजिए। ओके, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, नीट में कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जॉइंट में कैलकुलेशन का होता है, नीट में कॉन्सेप्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा है बुरा है ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट वी गो विथ अपैरेंट शिफ्ट और रियल शिफ्ट। आपने देखा होगा कि अगर कोई कॉइन एक बाल्टी के अंदर है तो उस कॉइन को अगर वाटर से फिल उस बाल्टी को अगर वाटर से फिल कर दिया जाए तो वो कॉइन लगता है कि थोड़ा ऊपर आ गया है, इसको कहता है कि अपैरेंट शिफ्ट। ओके, सो देयर आर टू केस। नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में और आप देख रहे हैं कि रेयर मीडियम। सपोज ये डेंसर मीडियम है और ये है, सॉरी ये है रेयर मीडियम, एयर होता है या कहीं भी होता है। ओके, अगर यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ले तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, ऐसे जाते हैं और डेंसर से रेयर तो वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है आई और आर। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड करें पीछे से तो यहाँ पर वो आता है। ओके, सपोज ये ऐसे ही जाता है, इसको ऐसे ही लिखा नहीं, रेज ऐसे होता है तो इसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं ओ, इसको हम इमेज को आई कहते हैं। ओके, सो द रियल डेप्थ ये है लिक्विड सरफेस, ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड से भरा हुआ है। ओके, लिक्विड सरफेस। सो लिक्विड सरफेस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हम कहते हैं एच। एच होता है क्या, रियल डेप्थ। एच का मतलब क्या है, रियल डेप्थ। एच का मतलब क्या है, रियल डेप्थ। अब जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एच डैश। एच डैश होता है अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो होता है रियल डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है यहाँ पर वो होता है म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपैरेंट डेप्थ। सो रियल डेप्थ क्या है, एच है, अपैरेंट डेप्थ क्या है, एच डैश है। अब शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट है एच माइनस एच डैश, ये शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट होता है एच माइनस एच डैश। इस ये अगर कैलकुलेशन अब किया तो ये आता है 1 माइनस 1/μ मल्टीप्लाई बाई रियल डेप्थ। 1 माइनस 1/μ मल्टीप्लाई बाई रियल डेप्थ। ओके, ये कहाँ होता है, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है। ओके, इसको लिखिए।
अभी ऑब्जेक्ट जो है वो, अब इसको उल्टा की दीजिए। अब ऑब्जेक्ट है किसमें, डेंसर मीडियम में, सॉरी ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम में, ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम में, और ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम में, और आप देख रहे हैं डेंसर मीडियम से। कैसे होगी, ऑब्जेक्ट है रेयरर मीडियम में, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो यह नॉर्मल अब आया है तो ये नॉर्मल के तरफ आ जाएगा, ये आई ये आर। अब इसको आता है तो इसको अगर हम खींचे पीछे तो यह होता है इमेज का पोजीशन। अब ये लिक्विड सरफेस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है h है, लिक्विड सरफेस के इमेज का जो डिस्टेंस है h डैश है। यहाँ पर h डैश इज ग्रेटर देन h, देन द लैटरल शिफ्ट जो है d, ये होता है क्या 1 माइनस, सॉरी ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू h, म्यू माइनस 1 इंटू h। सो पहले था 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू h, अब हुआ h म्यू माइनस 1 इंटू h। ओके, और म्यू का जो वैल्यू है वो उल्टा हो जाएगा, दैट इज अपैरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ दैट इज h डैश बाय रियल डेप्थ। ओके, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करके अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हो। ओके, क्या होता है। सो वी गो विथ ए न्यूमेरिकल। सपोज एक ऐसे बॉक्स है, इसके जो बॉटम है वहाँ पर 1 मीटर इसको लिक्विड से भर दिया, फिल्ड विद लिक्विड। अब ये बॉटम में एक ऑब्जेक्ट है और पॉइंट है, इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं और मार्क भी कह सकते हैं, कोई मार्क या पॉइंट है। तो ये कोई अगर यहाँ से देख रहे हैं, कोई यहाँ से देख रहा है, उसको इसको जो डेप्थ है रियल वो है 1 मीटर, लेकिन उसको लगता है कि वो ये 0.1 मीटर राइजेज अप, या कि 0.1 मीटर ये शिफ्ट हो गया है, ये ओ पोजीशन से आई पोजीशन में शिफ्ट हो गया। तो ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं कि शिफ्ट। यहाँ पर शिफ्ट बता दी गई है कि 0.1 मीटर। फाइंड आउट द म्यू, फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। सो इसको लग रहा है कि ये आ गया है ऊपर, राइजेज अप 10 में शिफ्ट। सो अपैरेंट डेप्थ इज ये वाला, अगर ये टोटल 1 है तो 1 से 0.1 दैट इज सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0.9 मीटर अपैरेंट डेप्थ। अभी ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, हम देख रहे हैं रेयरर मीडियम से। सो क्या फॉर्मूला है हमको पता है, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है 1 मीटर, अपैरेंट डेप्थ कितना है 0.9 मीटर, दैट इज 10/9। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, 10/9। ऐसे ही छोटा छोटा सवाल पूछते हैं नीट में। ओके, आई होप आपको आते होंगे ये सवाल। ऐसे ही इसका नेक्स्ट डे we will go with some very important numericals we need, so don't skip or don't क्या कहते हैं कि don't कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए। ओके, सो अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है आपको पता है कि अगर डेंसर मीडियम से, यह है डेंसर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रांसफर होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो वो जो नॉर्मल है उससे एवे जाता है।
अब सपोज ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आर, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस का सर्टेन वैल्यू है। अगर आई को हम बढ़ा दिया जाए, थोड़ा बढ़ा दी जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के जो सर्टेन वैल्यू है, सपोज इसको हम मान लेते हैं कि थीटा सी, तो रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग थ्रू द गोइंग along the surface of liquid, along the surface of liquid, that is the refracted angle of reflection becomes R becomes 90 degree. So for which angle of incidence, angle of incidence refracts, angle of refraction, angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle, is called critical। अब क्रिटिकल एंगल अगर थीटा है तो कह सकते हैं कि साइन थीटा सी बिकम्स 1 बाई म्यू, और म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन। सो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा से भी ज़्यादा, थीटा सी से भी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सपोज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या फिर जो आई का जो वैल्यू है, सपोज मान लेते हैं कि इसका वैल्यू है I1 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द रिफ्लेक्टेड रेज कम्स बैक टू द सेम मीडियम which we call says refraction, and no part is goes along the rarer medium, so it is called total. So the whole incidence is called total, as inside the material, inside the liquid, so internal refraction, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका भी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है माइलेज इन द डिजर्ट, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, अब इसके बाद इसके एक और भी एक सुविधा है जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो मछली है वो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से जो पानी के बाहर है उसको देख सकते हैं, बट एक कोन के अंदर, एक इमेजिनरी कोन, उसके अंदर वो देख सकते हैं। कैसे होता है कोन, सपोज ये है लिक्विड सरफेस, यहाँ होता है मछली। अभी वो मछली एक कोन, अगर हम एक कोन ड्रॉ करें तो इस कोन के जो बाहर है, इस कोन के ये लिक्विड है, वाटर है, सपोज ये वाटर है, इस कोन के बाहर अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा सी, इसका वैल्यू होता है 98, सो सेमी वर्टिकल एंगल होता है 49। सो 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री एंगल में जितना भी चीज़ है वो देख सकते हैं। ओके, सो in this surface if you take normal, then this is theta c, so this angle is also theta c। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा से भी ज़्यादा तो वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, सो अगर ये कोन का जो रेडियस है, अगर मैं मान लूँ कि r है, और ये कोन का जो ये मछली से जो इसका जो डिस्टेंस है, ये पर डिस्टेंस, अगर ये कोन का जो रेडियस ये r होता है और लिक्विड सरफेस से अगर मछली का डिस्टेंस h होता है, तो वी कैन से दैट द रेडियस r इक्वल टू h बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। सो द एरिया ऑफ द कोन pi r square, that is pi h square by mu square minus 1। ओके, तो ये एक
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो एडवांटेज हैं। ओके, इसके और भी एक एडवांटेज है जो है इलेक्ट्रिकल केबल में, वी नोन दिस एज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में है तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली मोर देन 2 सरफेस होता है। एक को हम कहते हैं कोर, जो इनर वाला सरफेस है इसको हम कहते हैं कोर, और जो आउटर सरफेस है इसको हम कहते हैं क्लेडिंग। अब जो लाइट रेज आता है यहाँ पर, अगर ये नॉर्मल है तो ये कहते हैं मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये निकलता है। सो कोई भी लाइट रेज का कोई भी जो पार्ट है वो लॉस नहीं होता है। ओके, बिकॉज द मटेरियल ऑफ कोर, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कोर इज ग्रेटर देन द क्लेडिंग, सो it becomes multiple internal reflection, so we get the bright or intense light. Okay, and then this electrical signal is converted into light by optical transducer. तो आज हम लोग जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन के जो बेसिक पार्ट है वो हमने जाना है, जो की पॉइंट्स हमने बता दिया है। और नेक्स्ट दिन हम इसके बारे में जो न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, जरूर देखिए उसको, तो वो उसको सॉल्व करेंगे। देन प्रिज्म के बारे में भी बताएंगे अगले दिन। सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लर्न और टीच यू अप्रोप्रिएटली। ओके, ताकि आप नीट को एग्जाम में सफल हो सके। सो गाइड्स, माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।